So now, after the morning session, we discussed up to what are the simple stresses, strains, the types of stresses, the types of strains, what are the different moduli of elasticity, then the relations between them, and the basics what we required for the very first chapter. So now, based on whatever we have discussed, we'll go forward to understand some more concepts in the same area. Okay, so let's continue. Let me share my screen. Okay, so this is what we were on. We were on this particular screen. Okay. Yes, sir. Yeah. So if you know relationship between the elastic constants we were discussing, and we understood there are three constants. That is modulus of all three moduli of elasticity. That is Young's modulus. That is E. The bulk modulus. That is K. And the rigidity modulus or the shear modulus, that is G, and this mu is the Poisson's ratio. So we have relations between them. Now these relations will be useful for us to calculate some of the numericals, which will be doing it after this. Okay, so let's go to some of the numerical sections, and then after that we'll continue with the concepts. So the next one, as you can see, the numerical 1.1. Yeah, so here the numerical goes as the circular bar, a circular bar of diameter 50 mm is subjected to pull of 50 kilonewton. There is a circular bar, its diameter is given 50 mm and it is subjected to pull of 50 kilonewton. The elongation in and the length, right? The elongation in the length, elongation let us have this over here. Okay. Yes, Khan Saab, Arsalan Khan, you have raised your hand. Okay. Yes, sir. I was having a doubt about Poisson's ratio. Can Poisson ratio be negative? Yes, it can be. मैंने बोला था कि the Poisson's ratio, if you go to the back side, you can see this Poisson's ratio. The Poisson's ratio it is basically from -1 to 0.5, right? पापा Okay. This minus sign से बात indicates. किया, उन्होंने बोला पॉसिबल नहीं है ब्रांच चेंज करना, नॉट पॉसिबल. Who is this? से बात किया, सब ने बोले कि पॉसिबल नहीं है ब्रांच चेंज करना, उनको मैसेज आना था. वो तो हो गया, कर ही हो गया था ना. अरे सब पॉसिबल, तुम माइक आलोक, बंद नहीं, डेट ही नहीं है, सब ऐसा बोल अरे के ब्रांच मत चेंज कर यार. कल कुछ नहीं करेंगे. आलोक तुम माइक बंद कर. सर ही सब बोले कि पॉसिबल सर है. डेट वगैरह कुछ अगर होता तो ग्रुप में मैसेज आते या फिर सब बताते कि हाँ ये सब होने वाला है. सीएल को मैसेज नहीं है. अरे माइक तो ऑफ कर रहे भाई. तो उन्होंने कुछ किया ही, बोले अगर कर दे तो उसके लिए ऑफलाइन. Wait. ब्रांच मत छोड़ यार, इग्नोर कर रहा है यार. छोड़ यार प्लीज. Okay. So we were on this Poisson's ratio. As I explained you, somebody asked a question. The Poisson's ratio was there. No, I have on it. Okay. The Poisson's ratio, it can be negative, but you know that the negative sign indicates what? We know that the negative sign is only for the decrease and increase purpose. So therefore, in practical life, practical applications, okay, we use 0 to 0.5. Yeah. Okay, sir. So let's go for the first question, which we were about to solve. Okay. Yes, Sanket. रिलेशन का वापस दिखा दो ना सर, वो लिख रहा था मैं. Okay, I will be sharing this after this one. मैंने इसलिए share नहीं किया because I was continuing it. I will be sharing it. Don't worry. प्रॉब्लम के टाइम पे यूज होगा, इसके लिए अभी लिख लेते हैं. Who is this? हेलो सर. Yes. सर वो प्रॉब्लम्स के टाइम पे रिलेशन यूज होगा, इसके लिए अभी लिख रहे थे. Problems. Now it is on. Good. Okay. So it is fine. Deflection of actually loaded circular taper rod. Deflection means PL by AE formula I cannot use as there was no uniform cross section.
So let's see how we can do this for our case. Now here we know that the cross section of taper rod continuously increases with increase in x, as you can see. So now this is a three-dimensional part. I will draw a 2D diagram for this, a 2D diagram. So let's say this is my one end, and sorry, okay. Simple. So this is my taper rod. ओके हाँ, अभी यहाँ पे मैंने लोड अप्लाई किया और इधर लोड अप्लाई किया, ठीक है। ये जो उसका डायमेंशंस है, ये डायमेंशंस कितना है, दिस डायमेंशन इज d2 and this dimension is d1, okay, and this is my center line. Let's say what I'm doing here is, अभी मुझे क्या करना है, let us assume there is a particular at a particular section, यहाँ पे मैं एक assume करता हूँ एक disk, okay. So let's say at the center I have a certain small section, मेरे पास एक छोटा सा सेक्शन है, ये ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शंस को अगर ज्वाइन करूंगा तो मुझे रॉड मिलेगा, राइट। टेपर रॉड मुझे ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस को अगर मैं रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन के साथ ज्वाइन करता हूँ तो मुझे मिलता है, ठीक है। तो मैंने ये पोजीशन कहाँ से कहाँ पे, देखो टोटल लेंथ जो है इसका, टोटल लेंथ है रॉड का वो L है, और मेरा ये जो पोजीशन है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे x, एंड ये जो थिकनेस है इसका वो थिकनेस कितना है, तो इट इज लेट्स से dx। क्या ये मैंने किया, एक एलिमेंट्री पार्टिकल लिया है जहाँ पे ये टेपर रॉड ऐसे बनता है फॉर एग्जांपल। हाँ, अभी ये जो है यहाँ पे डायमीटर d1 है, इधर डायमीटर d2 है, इसका डायमीटर कुछ अलग रहेगा। लेट्स से द डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, लेट इज आई एम कॉलिंग इट एज dx। हाउ मच इज द डायमीटर, इट इज dx। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग व्हाट इज दिस डायमीटर dx। So let's see how we can do. So for that, let us draw some perpendicular from these points. So let us draw some perpendiculars like this. यहाँ पे perpendicular है ये, and let us draw some another perpendicular from this. Okay, ये मैंने perpendicular draw किया. Now you can see, हाँ, अभी मुझे बताओ ये perpendicular और ये perpendicular के बीच में कितना distance होगा? So that distance is d1, right now, because इधर भी वही perpendiculars है, right? Okay, that distance is d1. So can you tell me how much is this distance? This distance would be d2 minus d1 divided by 2. All of you agree with me? ये जो टोटल होगा d2 minus d1, उसका आधा आधा दोनों साइड रहेगा। ये भी कितना होगा, d2 minus d1 by 2। तो ये दोनों में से मैंने एक साइड पे लिखा d2 minus d1 by 2। And now assume, let us assume that ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है, ये हाइट को मैं assume करता हूँ y। ये मैंने assume किया एक लेटर y, okay. So now you can see I am drawing the upper triangle, only that triangle वाला part, okay. यहाँ पे ये जो हाइट है वो हाइट y है, और ये जो हाइट है वो है d2 minus d1 by 2, okay. एंड ये जो डिस्टेंस होगा वो x है, और ये टोटल कितना है, तो टोटल है l। नाउ दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे को, बिकॉज ये इनके बीच में एंगल कॉमन है, दो साइड्स पैरेलल है, देखो ये साइड और ये साइड एक दूसरे को पैरेलल है। सो देयरफॉर दिस टू साइड्स आर पैरेलल, या सो अगर साइड्स पैरेलल है एंड तो एंड द एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, and similar triangles में we can say sides are in proportion. So I can say this vertical side is proportion with this, so in proportion है तो I can write down y upon d2 minus d1 by 2, that is also equal to x upon l, x upon l, ठीक है। If you cross multiply this, what is the y value? So you will get y equal to d2 minus d1 into x divided by 2l, d2 minus d1 into x divided by 2l. This is what we got after solving y. Now you can see what is dx. मैंने क्या लिखा था dx? dx ये जो छोटा सा white वाला डिस्क तुम्हें दिख रहा है उसका क्या है, उसका वो diameter है। तो now I can write down this diameter dx is basically, you can see dx is nothing but
ये जो d1 है बीच का पार्ट, ये है d1 प्लस ये y और ये नीचे वाला y. So therefore I can write down d2 is dx is nothing but d1 plus 2 times y. So I know the value of y here. I can substitute the value of y here. So what I'll get, d1 plus 2 times the entire thing, that is d2 minus d1 into d2 minus d1 into x divided by 2l. Now this 2 and this 2 can be cancelled out. 2 cancel हो गया तो बचेगा क्या? I will get d1 plus d2 minus d1 x upon l. That is equal to my dx. Have you understood it? इतना पार्ट समझ में आएगा तुम्हें? ये इसमें कुछ भी मैंने कुछ किया नहीं है. This is all about geometry. जो मुझे दिख रहा था वहां पे मैंने क्या किया, एक रैंडम डिस्क लिया. वो डिस्क जिसका डायमीटर dx है. बट हाउ टू गेट द डायमीटर ऑफ dx? तो उसके लिए मैंने कुछ पैरेलल लाइंस बनाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड वो परपेंडिकुलर जहाँ पे कट करता है वो डिस्टेंस को y बुलाए. अब ये y को मैंने फाइंड किया बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो अगर मैंने ऐसा सॉल्व किया, नाउ इफ आई नो द डिस्टेंस, now if I know this particular d2 minus d1 and this distance, so now I can use, अभी ये जो डिस्क है, ये छोटा जो डिस्क है जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा था in yellow color, or else I'll change my color to red. यहाँ पे ये जो डिस्क दिख रहा है ये, अभी ये डिस्क को अगर मैं बात करूंगा तो ये डिस्क इज एज गुड एज अ सर्कुलर डिस्क. मतलब ये सिंपल ऐसे डिस्क की तरह है, राइट ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन डिस्क की तरह है. तो इसके लिए मैं वो PL/AE वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ. For this very small cross section, let's say if I have that disc like this, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर है dx एंड जिसका थिकनेस कितना है, जिसका थिकनेस है dx, स्मॉल dx, राइट. दिस डायमीटर, नाउ इसके ऊपर भी कितना लोड एक्ट कर रहा है, तो वही लोड एक्ट कर रहा है P दोनों साइड में. सो कैन आई यूज द डिफ्लेक्शन फॉर दिस डिस्क? मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एंटायर रॉड. मैं रॉड के लिए फाइंड ही नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे डिस्क के लिए फाइंड कर रहा हूँ. तो छोटे डिस्क के लिए अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, तो आई विल बी गेटिंग दिस वे. सो आई विल राइट डाउन हियर. ओके, आई राइट डाउन हियर. सो नाउ, so the elongation delta L for small disk, this is for small disk, which I wrote over here. So that small disk is nothing but PL by area of that small disk into E. This is the formula. Now P is as it is, the length of that disk, ये जो छोटा डिस्क है जो मैंने वहां पे लिखा है, जो छोटा डिस्क है जो वहां पे लिखा है मैंने, उसका लेंथ है dx. Are you understanding why length is dx? You can see here also the length is dx, and ये जो डिस्क है ये छोटा, उसका लेंथ कितना है, तो लेंथ dx है, अपॉन एरिया, एरिया इज π/4 इनटू उसका डायमीटर कितना है, तो उसका डायमीटर है ये dx, ये dx उसका डायमीटर है. तो मैं इसका लिख सकता हूँ π/4 इनटू कैपिटल dx इज द डायमीटर, द होल स्क्वायर, इनटू द e which is constant. ओके, कैन यू सी दिस? अभी मुझे बताओ, ये जो मैंने निकाला, ये जो इलोंगेशन निकाला मैंने, ये छोटे से डिस्क के लिए लिखा, ठीक है. यही इलोंगेशन को अगर मैं पूरा इंटीग्रेट करता हूँ फ्रॉम 0 टू एंटायर L, तो ये डिस्क अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे और उसको इलोंगेट करेंगे. सो देन आई विल गेट द टोटल इलोंगेशन ऑफ माय टेपर रॉड. तो कंसेप्ट क्या था मेरा, कि एक छोटा डिस्क, इमेजिनरी डिस्क अज्यूम करो, जिसको जो इन टर्म्स ऑफ d1 d2 है, बिकॉज यू नो दैट ये कैपिटल dx, ये जो भी पैरामीटर्स है ये सब कुछ एक तो d1 के टर्म्स में और d2 के टर्म्स में, बिकॉज ये डिस्क का जो पोजीशन है वो x के साथ वेरी कर रहा है. तो आई कैन इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन वेयर x विल स्टार्ट फ्रॉम 0 and it will go up to x equal to L. Okay, I can integrate this equation. So therefore I will write down total elongation, total elongation is given by, I will write down delta L is integration from 0 to capital L, integration of delta L for small disk. ये जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब क्या है, 0 टू L, ये पूरा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो लिखना पड़ेगा. यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है वो, P इंटू dx अपॉन, ठीक है, π/4 इंटू dx स्क्वायर इंटू E. ना यहाँ पे देखो P इज अ कांस्टेंट, व्हाटएवर थिंग्स आर कांस्टेंट आई विल पुट देम आउटसाइड माय इंटीग्रल साइन. जो भी चीज यहाँ पे कांस्टेंट है सबको मैं आउटसाइड इंटीग्रल पुट करूंगा. तो दिस 4p अपॉन पाई ई, ये सब कांस्टेंट्स हैं. तो ये 4 ऊपर गया इसलिए 4p हो गया, और पाई और ई कांस्टेंट्स है.
ठीक है, तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन में 0 to L, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन dx स्क्वायर। नाउ व्हाट इज dx? dx इज दिस टर्म, ये dx हमारा ये टर्म है, राइट? तो मैं वो टर्म को लिखता हूँ d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन L इंटू x, द होल ब्रैकेट का स्क्वायर, एंड दैट यू हैव टू इंटीग्रेट विथ x। अभी थोड़ा सा इंटीग्रेशन का नॉलेज मुझे लगेगा which you have must have used in your सर एक और बार बता सकते हो वो एल की जगह हम लोग ने dx क्यों लिया? अच्छा, ये l की जगह dx, ये l क्या होता है? ये नॉर्मल जब रॉड में लेता हूँ ऐसा, तो l मतलब ये होता है ना लेंथ। तो अभी मेरा डिस्क इतना ही है ना, ये छोटा है ना, तो उसका लेंथ क्या है? अच्छा अच्छा सर, समझा सर, dx है। ओके सर, थैंक यू सर। सो फाइन, erase this, yeah, so as you can see now, ये जो 4p by pi e है वो तो बाहर ही रहेगा। ओके, नाउ व्हाट आई कैन गेट हियर इज, अभी ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए फॉर दैट यू शुड नो द फॉर्मूला। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, जस्ट टू रिमेम्बर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b रेज टू n। कभी सॉल्व किया ये इंटीग्रेशन? क्या आएगा इसका फॉर्मूला? कैन एनीबॉडी लेट मी नो? क्या आएगा? अपॉन n है ना, तो ये अपॉन n को हम लोग ऊपर लेके माइनस n लिख सकते हैं। तो ax प्लस b रेज टू माइनस n क्या हो जाएगा? ax प्लस b रेज टू माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, बराबर ना, इनटू 1 अपॉन a, इफ यू रिमेंबर, एंड प्लस c लिखते थे हम लोग, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव डन इन इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन व्हिच यू मस्ट हैव स्टडीड इन 12th स्टैंडर्ड, इन 11th स्टैंडर्ड, और इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा, कहीं पे तो ये तुमने पढ़ा है, ठीक है? सो दैट होप यू रिकलेक्ट दैट थिंग एंड लेट्स सॉल्व दिस। ओके, तो अभी मेरा यहाँ पे अगर ये ax प्लस b क्यों लिखा है मैंने? देखो a कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है, सिमिलरली ये जो d1 है ना वो भी एक कांस्टेंट है, और ये d2, ये जो पूरा ब्रैकेट है वो भी एक कांस्टेंट है। तो आई एम ट्रीटिंग दिस एज माय a एंड दिस एज माय b, आर अंडरस्टैंडिंग इट? एंड बाकी x तो है वहां पे, और रेज टू n के बदले क्या है यहाँ पे? दिस इज माय n। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आंसर? सो लेट मी राइट डाउन द आंसर हियर, लेट मी राइट डाउन द आंसर। What is the answer now? I will write down 4p by pi e as it is. Okay, आंसर मैं डायरेक्टली ब्रैकेट में लिखता हूँ बिकॉज इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा मेरा आंसर? ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आएगा ना, d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l, ठीक है, इंटू x, राइट, रेज टू -2 प्लस 1, राइट ना, -2 प्लस 1 अपॉन, सॉरी, raised to, okay, upon this -2 plus 1, and the bracket complete from 0 to L. We have to substitute x as L because मेरा जो limits है वो क्या क्या है, कहाँ से कहाँ पे? My limits are from 0 to L. From 0 to L. Okay. So now let's solve this. I will write down 4p by pi e. अभी जब मैं 0 पुट करूंगा तो कुछ भी आंसर नहीं आने वाला, बिकॉज 0 पुट करूंगा और एक बार L पुट करूंगा, ठीक है? तो देखो अभी ये -2 प्लस 1 जो है, -2 प्लस 1 होता है कितना? -1, राइट ना? और ये जो भी कुछ लिखना है मुझे वो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम गेटिंग? तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक सर यस सर इनटू d2 माइनस d1 बाय l भी आएगा ना? हाँ वो लिख रहा वो डिवाइड बाय हूँ, d1। हाँ यहाँ पे आएगा अपॉन इंटू L ऊपर लिखते हैं और d2 माइनस d1 नीचे लिखते हैं, चलेगा? ऐसा, ठीक है? तो ये a 1 अपॉन a के बदले मैंने ये ऐसा लिखा। तो अभी ये ब्रैकेट के साथ ही मैं अभी उसको बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है? उसको लिखता हूँ मैं L अपॉन d2 माइनस d1, ओके? और इसके अंदर अभी जो बचेगा वो उसको, और एक माइनस साइन भी मैंने बाहर रखा, ये जो -2 प्लस 1 आने वाला है वो -1 आएगा, वो भी मैंने बाहर रखा, ठीक है? और else now you substitute L value. When I substitute L here, x and L cancel हो जाएगा, राइट? तो बचेगा क्या? d1 plus d2 minus d1. So एक बार बचेगा खाली d2. Are you understanding it? How I am writing d2? जब मैं x के बदले L पुट करूंगा, ठीक है, ये x के बदले मैं L पुट करूंगा यहाँ पे, तो L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? d1 plus d2 minus d1. तो -d1 plus d1 कैंसिल, ओनली d2 बचेगा।
एंड जब मैं 0 पुट करूंगा तो ओनली d1 बचेगा. Are you understanding it how I am getting d2 minus d1 here? Yes sir. Right? Are you understanding it? सर वो पावर -1 है तो वो 1/d2 माइनस 1/d1 आएगा. हाँ 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 हाँ. अच्छा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ये क्लमजी हो गया थोड़ा इसलिए दिख नहीं रहा है. वेरी गुड. यू मेड अ वैलिड पॉइंट कि इट हैज टू बी 1/d2 minus 1/d1. right, because there is a power. This is -2 + 1. ये हमारा -1 वाला पावर है जो इसको 1/d2 minus d1 करेगा. Now you can cross multiply and get the answer 4p by pi e into -l d2 minus d1. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, d1 minus d2 upon d1 d2, राइट ना. ठीक है, अभी ये देखो d1 minus d2 minus d1 विथ दिस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. मतलब माइनस अगर अंदर दिया तो वो सब कैंसिल हो जाएगा. एंड आई विल गेट द फाइनल आंसर एज 4p by pi e d1 d2. Okay, so what is my answer for elongation of taper rod? 4p by pi l. So L 4PL 4p l pi d1 d2. So what is my elongation is 4p l pi d1 d2 and 2e. You can write down e last also, last में. So this is my answer. ठीक है, इसमें हमने खाली थोड़ा सा डेरिवेशन किया. समटाइम्स दे में आस्क यू इन एग्जाम कि हाउ टू गेट द फॉर्मूला फॉर पैरेलल टेपर रॉड. तो टेपर रॉड का कंसेप्ट यहाँ पे एक ही था कि सिंपल एक डिस्क अज्यूम करो सेंटर पे, उसका इलोंगेशन फाइंड करो एंड उसको इंटीग्रेट कर दो. ठीक है, सो वी हैव डन द सेम थिंग. ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, सो लेट्स सेव दिस. अगेन ये थोड़ा रिवाइज होगा बिकॉज वी हैव द अनदर केस एज नाउ दिस वाज अ सर्कुलर टेपर रॉड. नेक्स्ट टाइम we'll have a rectangular taper rod. So let's go to the next one. You can see here. Now this is rectangular taper rod. अभी ये circular नहीं है, rectangular है. जिसका thickness कितना assume करेंगे हम लोग, तो whatever the thickness we want. मतलब क्या है कि हमारा ये side उसका ये है, ये जो thickness है मैंने वो t assume किया है. You can see here t is the thickness. तो इसका भी मैं 2-dimensional diagram बनाता हूँ which will become simple for us to understand. So देखो, sorry, yeah, सिंपल वे में ये रॉड है. ओके, नाउ टेपर रॉड इसका जो थिकनेस है, इसका क्रॉस सेक्शन अगर हमने बनाया तो क्रॉस सेक्शन में इसका थिकनेस t है. ठीक है, यहाँ पे ये जो ये गिवन है लेंथ, ये जो हाइट है उसका, ये हाइट कितना दिया है हमें. टिकड़ा क्यों आ रहा है डायग्राम सब. वेट अ मिनट, आई एम इरेजिंग इट. हाँ, ओके, this is my rod, taper rod. This height is how much? This height is how much? कितना है वो, b1. ठीक है, I can call it as this as b1. and जो ये height है पीछे की तरफ, वो मैक्सिमम हाइट है उसका, उसको मैं बोलूंगा इट इज b2. ओके, सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे बीच में डिस्क लिया है, ऐसे सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी एक बीच में डिस्क लेंगे. डिस्क मतलब अभी वो डिस्क नहीं होगा, इट विल बी अ स्ट्रिप. सो वी कैन कॉल दिस एज द इमेजिनरी स्ट्रिप एट द सेंटर. दिस इमेजिनरी स्ट्रिप विल हैव द डिस्टेंस dx, मतलब उसका लेंथ dx होगा और उसका पोजीशन यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ से वो पोजीशन x डिस्टेंस पे, और टोटल जो रॉड का लेंथ है वो है l डिस्टेंस पे. टोटल जो रॉड का लेंथ है वो कितना डिस्टेंस पे, तो वो है l डिस्टेंस पे. ओके, सो नाउ लेट्स डू द सेम वे जैसे हमने पहले किया था. अभी अज्यूम करते हैं कि इसका जो हाइट होगा वो bx होगा. तो उसके लिए bx फाइंड करने के लिए क्या कर किया था हमने, जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था. अभी हमें पता है कि अगर ये मैंने y अज्यूम किया, ठीक है, तो ये कितना होगा, दिस वुड बी इक्वल टू b2 minus b1 by 2.
ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ द बी एक्स विल बी इक्वल टू b1, ये जो है b1 प्लस 2 टाइम्स y, राइट ना, b1 प्लस 2 टाइम्स y, और ये जो y होगा वो कहाँ से मिलेगा मुझे, तो वह जैसे मैंने पहले किया था, ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था, इफ यू टेक दिस एज अ ट्रायंगल, ये अगर y है, ये तुम्हारा b2 माइनस b1/2 है, ये x है, और ये टोटल लेंथ कितना है, l है. So if you cross this one, if you do the x upon l, it will be equal to y upon b2 minus b1/2, by 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है. So if you calculate y, it will be equal to b2 minus b1 into x upon 2l, and if you solve for bx, you will get b1 plus 2 times. सेम वे इफ यू सी, पहले वाला डेरिवेशन और ये डेरिवेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, खाली मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है. तो क्या मिलेगा मुझे, b1 प्लस b2 माइनस b1 अपॉन l इंटू x, दैट इज इक्वल टू bx. नाउ नाउ अभी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं देखूंगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इट इज सिंपल. नाउ इसको पाई बाय 4 डी स्क्वायर की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज द रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज bx इंटू थिकनेस. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अभी ये जो मेरा स्ट्रिप मैंने अज्यूम किया है यहाँ पे सेंटर पे, ये ऐसा है मेरा स्ट्रिप, राइट ना, जिसका ये जो लेंथ है वो dx है, और यहाँ पे हमने फोर्स लगाया p का, ठीक है. और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा ये वाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिंपली होगा, इट इज bx इंटू टी. तो कितना होगा, bx इंटू टी. ओके, सो नाउ इट विल बी सिंपल फॉर अस टू इंटीग्रेट ऑल्सो. कैसे करेंगे हम लोग, सो अज्यूमिंग दैट कि डेल्टा एल और डेल्टा स्मॉल एल लिखता हूं मैं, डेल्टा स्मॉल एल फॉर स्मॉल स्ट्रिप, स्ट्रिप के लिए इलोंगेशन, वो क्या फॉर्मूला होता है, पी एल बाई ए, ठीक है. बट p एज इट इज, l का वैल्यू इज नथिंग बट dx, एज यू हैव डन अर्लियर. यहाँ पे लेंथ इज नथिंग बट द dx, ओके. और एरिया क्या है, एरिया इज bx इंटू थिकनेस एंड इंटू e एज इट इज. Now if I want the total elongation, I need to integrate from 0 to l, and therefore I am integrating the delta small l, जो strip है उसको integrate करूंगा. तो 0 to capital L p into dx into bx into t into e. यहाँ पे बहुत सारी चीजें कांस्टेंट्स है, जैसे कि p कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, सब कुछ बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l 1 upon bx. अभी 1 upon bx मतलब क्या है, 1 अपॉन bx क्या होता है, तो इट इज bx का पूरा फॉर्मूला है, वो पूरा फॉर्मूला लिख दो. क्या है वो, b1 प्लस b2 माइनस b1 अपॉन l इंटू x इंटू dx. नाउ हियर वी रिक्वायर अनदर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला. कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b. क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b dx, इट इज, इफ यू रिमेंबर, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ ax plus b, right na, into 1 by a, right, yes natural log of x plus b into 1 by a. तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, p into p upon t e as it is. अभी यहाँ पे if you know this is your a and this is your b, right, तो ये हो जाएगा natural log of, सेम पूरा लिखता हूँ, b1 plus b2 minus b1 upon l into x, ठीक है. ये हो गया नेचुरल लॉग फ्रॉम 0 टू l, और इनटू बाहर वो लिख देता हूँ उल्टा, 1 अपॉन a मतलब आएगा l अपॉन b2 माइनस b1, ठीक है. अभी इसको एक बार हम लोग x को l डालेंगे, एक बार x को 0 डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो, p अपॉन टी ई, या नेचुरल लॉग. अगर मैं x को l पुट करता हूँ तो l कैंसिल, एंड विल गेट नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट, क्या मिलेगा हमें, एल कैंसिल, b1 भी कैंसिल हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ b2 मिलेगा, राइट. माइनस 0 पुट किया तो विल गेट नेचुरल लॉग ऑफ b1, राइट ना, बराबर, इनटू l बाय b2 माइनस b1. ओके, सो आई विल गेट दिस फॉर्मूला एज p इनटू l अपॉन t e इनटू b2 माइनस b1, ओके, एंड इनटू नेचुरल लॉग a by b इज नथिंग बट log a minus log b log b, हाँ, so b2 by b1. So in this way we can find out the total elongation for the taper rod. But if it is
if it is the rectangular taper rod. Okay, so this is also another formula which we have to remember. So this is the formula which you have to remember, and the earlier one which we derived, ये वाला भी formula हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा to solve the numericals. But in sometimes they ask you in theory questions also to derive this. तो derivation if you see अगर ये एक बार भी लिखा तो वापस करने की जरूरत नहीं होती, because it is what we are doing is a mathematics, nothing else. But mathematics करते वक्त जैसे कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ 1/a लिखना या फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला गलत लिखा या पावर नहीं लिखा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. So if you know the formula and आंसर नहीं आया तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ तो मिस्टेक है. So you can re-engineer it or rework it and do it. Okay, understanding it? Have you understood this particular part? So Yes. now we are able to calculate the elongation for uniform rod, uniformly cross section rod. If it is variable cross section, that also we can do. And अगर uniform varying होगा, मतलब taper होगा, तो also we can do. ठीक है, by using this formulation. Okay, so now next. Yeah. So let's understand now the this is the last slide for today. We need to solve one numerical, that's it, and then we can stop. But this question is not that simple, but you just think on. Let's go to the question. What is the question says? A steel rod of cross section area, you can see there is a steel rod of cross section area 2000 mm square, and there are two copper rods. There are two copper rods, right? Okay, so there are two copper rods, each of area of cross section 1000 mm square. Each of area of cross section 1000 mm square together support a load of 500 kilonewton as shown below. Find the stresses in the rods, and if E for steel is 200 GPa and E for copper is 120 GPa, you have to find out the stresses. Okay, so how can we start this? Anybody can give me some inputs how to do it? Now one question, is the load acting is axial? Load यहाँ पे axial है क्या? Yes, sir. Is it or not? Yes. Yes, sir. Yes. So we are not deviating from the topic. Topic पे ही हम लोग, right? Axial load है, मतलब हम लोग जो PL by AE वाला formula है वो तो use कर सकते हैं, right? हाँ, but we have some different materials involved now. So पहले हमने देखा था कि अलग-अलग shape का था, तो we could do it. Now the next question is, if it is of two different materials, then how to do it? अभी होगा क्या यहाँ पे? अभी यहाँ पे 500 किलो न्यूटन का जो लोड है वो तीन रॉड सपोर्ट कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये है कि तीनों पे 500 किलो न्यूटन लोड आएगा क्या? No, sir. नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, लोड इज गोइंग टू बी शेयर्ड, द लोड विल बी शेयर्ड बाय ऑल थ्री रॉड्स. ठीक है, ये दोनों रॉड्स एक दूसरे पे, मतलब तीनों रॉड्स शेयर करेंगे लोड. उसमें से अभी अगर वो तीनों सेम होते तो वी वुड हैव सिंपली सेड दैट कि लोड ऑन ईच रॉड इज 500 by 3, बट अभी ऐसा नहीं है. वी हैव सम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द रॉड, मटेरियल भी अलग है, तो हमें वो डायरेक्ट सिंपल रिलेशन नहीं लिख सकते हम लोग कि लोड आधा आधा डिवाइड हो रहा है. तो अभी यहाँ पे हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, अंडरस्टैंडिंग इट? तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे? तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी कुड फिगर आउट इज द लोड व्हिच इज देयर. टोटल जो लोड यहाँ पे दिया है वो क्या है? वो कांस्टेंट, मतलब वो फिक्स नहीं है. इट इज गोइंग टू बी शेयर्ड बाय बोथ द rods. Okay, both the type of rods. So let us now first of all figure out whatever the data is given and then try to solve this. So let's see data. Now in this data, yeah, I will make two parts. मेरे पास दो मटेरियल है तो मैं दो पार्ट्स करता हूँ. फर्स्ट इज स्टील एंड अदर इज कॉपर. बराबर, स्टील. ना स्टील के बारे में क्या क्या पता है लिख देते हैं. We know the area of cross section for steel rod. I will write down AS. कितना area of cross section? 2000 mm square. What is area of cross section for copper rods? अभी दो है इसलिए मैं दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर बार बार रॉड दो लेने की जरूरत नहीं. एरिया ही दो से मल्टीप्लाई किया, दैट मींस आई हैव कंसीडर्ड बोथ द रॉड्स. कितना हो जाएगा? 200 into 1000. It will be 2000 millimeter square. So I know the area of cross section. I know the Young's modulus for steel. How much it is? 200 GPa. And Young's modulus for copper, how much it is? 120 GPa. 120 GPa. Okay. So now
how we can do this. अभी सबसे पहले इसमें ये जो स्टील है, स्टील में कुछ जो स्ट्रेस आएगा, that stress is sigma s. I am calling that stress as sigma s, and the stress in the copper rod is sigma c. Stress in the copper rod is sigma c. Okay. So now you can see the lengths are given. Length भी दिया हुआ है. So let us find out the let us write down the length. Length for steel rod कितना है? Length steel rod का 400. 400. Very good. 4 दिख रहा है वहां पे 400 mm है. And length for copper rod is 300 mm. So we know the area, we know the length, we know the elongation. One equation, condition one हमें एक पता है, ठीक है? We also call it as load sharing equation. तो क्या लिखेंगे? Load sharing equation. Load sharing equation इसके लिए because I know that कि ये जो load है वो shared होने वाला है. So therefore I can write down the total load which is of 500 kilonewton. वो क्या होगा? Share होगा. So therefore I can write down load P will be equal to load shared by steel rod plus load shared by copper rod, right? इतना तो मुझे पता है, कितना है वो पता नहीं है, but इतना पता है. So can I, now I know the load, but कितना load है वो? 500 into 10 raised to 3. सर वो 2pc होगा ना? नहीं, मैंने पीसी में एरिया ही डबल कर दिया ना, तो बार बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है. अभी एरिया डबल ले लिया मैंने. ओके सर. If you take area once here, then you have to multiply by 2. तो एक ही बात होता है, उधर 2 से मल्टीप्लाई करो या नीचे करो, doesn't matter. बराबर? Okay, so now P, what is P? It is the load acting on steel rod. So load acting on steel rod, I don't know the load, but I know the stresses. मुझे stresses find करना है ना, तो I know that stress equal to क्या होता है? तो stress is equal to load upon area. So what is load equal to? Stress into area, right? Can I write down this? तो मैं यहाँ पे अभी उसको लिख देता हूँ. So I know that it can be written as sigma s into area for steel plus sigma c into area for sigma copper for area for copper. Okay, out of this what are the things I know? Let us substitute them. So 500 into 10 raised to 3 ऐसे ही लिख दिया मैंने. 6 sigma s हमें पता नहीं है, but still area of s I know. कितना है वो area? 2000 plus ये कितना है? sigma c पता नहीं है, but area I know which is 2000. So 2000 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं? तो 2000 से डिवाइड करके कितना आएगा? 250. कितना? 250. पक्का ना? Sigma s plus sigma c. हाँ, sigma s plus sigma c as 250. We got one relation between them. दो अननोन से मेरे पास एक रिलेशन मिला, but एक रिलेशन से काम चलेगा क्या? नहीं सर. नहीं ना, right? एक नहीं चलेगा. Now what is the another relation? So another relation is what? What it is said that they are together supporting a load of 500 kilonewton. Now if they are supporting a load of 500 kilonewton, अभी for example ये केस में ऐसा हो गया कि लोड के वजह से स्टील रॉड कम इलोंगेट हुआ, कॉपर रॉड ज्यादा इलोंगेट हो गए और स्टील रॉड इधर ही रह गया. तो क्या हो जाएगा? ये जो ऊपर लोड रखा है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट? तो ये लोड जो है वो ये तीनों रॉड को एक साथ कंप्रेस करेगा. सो देयरफॉर जो भी इलोंगेशन कॉपर रॉड में आने वाला है वही इलोंगेशन क्या आना चाहिए? स्टील रॉड में आना चाहिए, राइट ना? अदरवाइज ये लोड ऊपर का गिर जाएगा, बराबर कि नहीं? जो इलोंगेशन मतलब अभी ये कंप्रेस होंगे ना, 500 किलो न्यूटन का लोड अगर मैंने रॉड्स के ऊपर रखा तो रॉड कुछ ना कुछ तो कंप्रेस होंगे. तो जितना कॉपर रॉड कंप्रेस हुआ है लेंथ में उतना ही स्टील रॉड भी कंप्रेस होना चाहिए, अदरवाइज वो गिर जाएगा ऊपर, राइट? तो इफ दे आर सपोर्टिंग दैट मींस द लोड दिस वी कॉल स्ट्रेन रिलेशन. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि लोड शेयरिंग इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन इक्वेशन. ओके, स्ट्रेन इक्वेशन या फिर इलोंगेशन इक्वेशन. तो ये स्ट्रेन इक्वेशन के हिसाब से अभी डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला मुझे पता है. क्या है डेल्टा एल का फॉर्मूला? इट इज PL by AE but for copper, and that is equal to PL by AE but for steel. Now I can write down. See here, अभी ये जो PL by AE है, P को मैं क्या लिख सकता हूँ? P को P by A, this P by A can be written as sigma. So can I write down this as sigma into L by E, right? For copper that is equal to sigma into L by E for steel. मैंने P by A को क्या लिखा? सिग्मा लिखा, because I am interested in equation in sigma. So now, yeah. So now what I'll get? It is sigma C, length for C upon E for C, right? Sigma for steel, length for steel, and E for steel. Now can you substitute the values? Sigma C तो हमको पता नहीं है, but length पता है. Length for copper is 300. I know the E for copper. E for copper is
120 अभी कन्वर्ट नहीं किया तो भी चलेगा बिकॉज दोनों साइड पे सेम जीपीए है, कैंसिल हो जाएगा. सिग्मा एस into length for steel is 400 upon this is 4 E is 200. So if you solve this, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा सी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एस मिलेगा कितना, ये कैंसिल किया तो 2 बचेगा यहाँ पे, राइट ना. एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट सिग्मा एस इज इक्वल टू 2 into 120 by 300. कितना होगा बताओ, पॉइंट में आंसर आएगा कुछ तो 0.8. 0.8 sigma s, and that is equal to sigma c. You got your second equation. Can you substitute the equation 2 in equation 1 to get the final answer? Can you do this? Yes, of course. So I can write down substituting equation 2 in equation 1. ठीक है, what you will get, sigma steel का आंसर बताओ मुझे और sigma copper का आंसर बताओ. करो जरा, substitute करो and get the answers. Okay. हेलो सर. Yes. सर क्या आप एक बार और बता सकते हो क्या स्ट्रेन इक्वेशन आपने मतलब कि क्यों किया? स्ट्रेन इक्वेशन कैसे लिखा? हाँ सर. ओके, तो देखो अभी एक तो पहले पता चला कि लोड शेयर होने वाला है. उसके बाद मुझे बताओ अभी फॉर एग्जांपल मैंने 3 रॉड के ऊपर एक ये रखा है, ठीक है. अभी ये रखने के बाद अगर वो स्टेबल है, वहां पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल है, मतलब उसने जो भी कंप्रेशन क्रिएट किया वो सब रॉड्स में सेम आएगा कि नहीं? सेम आना ही चाहिए. अदरवाइज अगर इनबैलेंस हो जाता, मतलब पता चलता कि बीच वाला रॉड ज्यादा कम इलोंगेट हो रहा है, बाकी वाले ज्यादा इलोंगेट हो रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, तो पूरा का पूरा लोड स्टील पे आ जाएगा. सो दैट इज द प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल दैट की द रॉड्स विल इलोंगेट डिफरेंटली. Okay. Yes, Understanding sir. it. That is why we have taken the elongation is same in both the cases. Yes, Rohit Yadav has given me the answer. Let's check with others. Now, as per Rohit, the answer is 138.88 and 111.11. The sigma for Yes, sir. steel is more, that is 38.88. 138.88. Unit is MPa and 111.11 again MPa. Okay. So, Yes. have you understood this particular part? सबको समझाएगा ये? Yes sir. शशि खत्री would like to ask something. Yes sir. वो 2 pc आएगा ना, 2 कॉपर रॉड्स है. हाँ, तो 2 कॉपर रॉड का मैंने पहले ही टेक केयर कर लिया था. कैसे किया मैंने? यहाँ पे देखो, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप. क्या किया मैंने? पहले ही एरिया डबल लिया ना, तो एज इफ देयर इज अ सिंगल रॉड. ओके, आइदर यू टेक 2 देयर इन एरिया कैलकुलेशन और एल्स तुम हर जगह पे 2 2 2 2 लिखो, जिधर मैंने स्टील का लिखा है वो भी चलेगा, ठीक है. बट बेटर होता है कि पहले एरिया में लिख देने का, सो दैट आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ? So similar wise we will solve some more numericals which are on either in RCC column, reinforced concrete column, because concrete columns में भी steel होता है, concrete भी होता है, लोड दोनों पे आता है. तो कितना लोड स्टील में आएगा, कितना लोड कंक्रीट में आएगा, अगर लोड ज्यादा है तो कौन सा पहले फेल होगा, all those kinds of things we need to discuss. And there is one important concept we need to discuss called as factor of safety, which is in the next class. We will discuss that. Quite 10 minutes early, but it is fine, we can do that. Okay. Of course, do you have any doubt? Any doubt in that you want to ask, the part which you didn't understand or some kind of thing?